بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اب نیم پاگل ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یہ بات اگر مجھے سمجھ آ جاتی تو شاید آج میری ذہنی حالت ایسی نہ ہوتی۔ مجھ سے پہلی نظر کی محبت کا دعوے دار میرا کروڑ پتی شوہر مجھ سے جانور کی طرح کام کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اس کی محبت ہے۔ ایسی انوکھی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ نہ صرف کام بلکہ روز ایک نیا جوڑا پہننا اور پھر اس جوڑے کا گھر سے غائب ہو جانا۔ میرے شوہر کی یہ منطق میری سمجھ میں تب آئی جب سب ختم ہو چکا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ بظاہر ایسا سلجھا ہوا نوجوان اندر سے اتنا عجیب ہوگا۔ یہ عجیب سا کھیل تھا جس کا محرم میں بن چکی تھی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کروڑوں کی جائیداد کے پیچھے مجھ جیسی ایک عام سی دیہاتی لڑکی کا ہاتھ ہوگا۔ یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ جسے جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام آسیہ ہے۔ میری عمر لگ بھگ 18 کے قریب تھی۔ میرے گھر میں ایک میں اور میرے اماں ابا کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہم گاؤں کے سادہ لوہ انسان تھے۔ ابا کسان تھا۔ ہماری اپنی زمین تھی جس پر وہ کاشتکاری کرتا اور ہمارا گزر بسر ہو جاتا۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی۔ کوئی خواب وغیرہ دیکھنے کی عادت نہ ڈالی تھی کیونکہ میں واقف تھی کہ ہمارے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے تو دیکھ کر خواہ وقت کی بربادی کیوں کرنی ہے۔ لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میری زندگی میں وہ ہونے والا ہے جس کا میں نے خواب تو دیکھنا دور سوچا بھی نہ تھا۔ عام دنوں کی طرح آج بھی میں زمین سے سبزیاں لینے گھر سے باہر نکلی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس سے گزری اور دھول اڑاتی دور جا کر رک گئی۔ میں اپنے دھیان آگے بڑھ گئی جب ایک خوش شکل نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً سے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن شاید وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھتی وہ اچانک میرے سامنے آیا تھا اور معذرت کرنے لگا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے مجھ پر دھول مٹی اڑی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، صاحب ہم گاؤں کے لوگ ہیں اور ہماری رگوں میں خون کے ساتھ یہ مٹی بھی دوڑتی ہے۔ ہمارا تو کام ہی ایسا ہے، آپ فکر نہ کرو۔ مجھے برا نہیں لگا، چلتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھتی وہ ایک بار پھر میری طرف بڑھا تھا اور ذرا سا جھک کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک دم سے اپنی آنکھوں میں چمک لیے میرا ہی شکریہ ادا کرتے چلتا بنا۔ میں تو حیران تھی، عجیب انسان تھا۔ معافی مانگنے آیا تھا اور مجھے ہی شکریہ کر کے چلا گیا۔ خیر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور خود سبزیاں لے کر گھر آ گئی۔ لیکن آتے ہوئے بھی آس پڑوس کے سب لوگ مجھے کافی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ مجھے دیکھتے ہی سرگوشیاں کرنا شروع کر چکے تھے۔ نہ جانے اب ان کو کون سی خبر مل چکی تھی جس کو یہ سب مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنے والے تھے اور مجھے نہ جانے کیوں اس طرح دیکھ رہے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا عجیب سا ماحول تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اماں ابا ایک کونے میں سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب ان کو کوئی بہت اہم بات چیت کرنی ہوتی تھی۔ میں نے بھائی کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر وجہ پوچھنی چاہی تو اس نے بھی کندھے جھکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بھی خاموشی سے باورچی خانے میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اب ان سب کے درمیان میں بھی جو کھچڑی پک رہی تھی وہ تو سامنے آ ہی جانی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے فارغ ہوئی تو اماں نے اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا جہاں ابا پہلے سے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر باہر چلے گئے۔ میں حیران و پریشان اماں کے بولنے کا انتظار کرنے لگی کہ ایسی بھی کون سی بات ہو گئی ہے جو صبح سے سب لوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اماں کیا بات ہے، آپ بتا بھی دیں۔ اب کیا مجھے ہارٹ اٹیک کروائیں گی؟ 5 جماعتیں پڑھی تھی تو اتنی انگریزی تو آ جاتی تھی، بس اس لیے جب بھی کوئی پریشانی والی بات ہوتی تو میرے منہ سے ہارٹ اٹیک والی بات نکل جاتی۔ اور ہمیشہ کی طرح اماں نے ایک دھموکا میری کمر میں لگایا، ذرا تجھے تمیز ہو، شادی کی عمر ہو گئی ہے اور عقل ابھی بھی گھٹنوں میں ہے، اللہ نہ کرے تجھے دورہ پڑے۔ میں تو تیرے دشمنوں کو بھی ایسا نہ کہوں۔ اب تو چپ کر، مجھے جو بات کرنی ہے وہ کرنے دے۔ ہمیشہ اپنی بک بک شروع کر دیتی ہے اور مجھے بات بول جاتی ہے۔ ہاں یاد آیا کچھ لاڈو، جب میری عمر تیری عمر سے کم تھی تو تب ہی میری شادی ہو چکی تھی، لیکن تو ماشاءاللہ سے 18 کی ہو گئی ہے اور اللہ کی کرنے دیکھ جس کے لیے ہم پریشان رہتے تھے اس کا کیا ہو گیا، اور آج دیکھ تیری تو قسمت ہی کھل گئی۔ اماں جو بولے جا رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اماں کیوں پہلیاں بجوا رہی ہیں، بتا بھی دے اب کیا ہوا ہے۔ مجھ سے اور صبر نہ ہوا تو اماں کی بات کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ اماں لیکن اتنی جلدی کیسے؟
मैं अपने घर को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अम्मा को कह दिया, देख आसिया, अभी तो जानती नहीं कि रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है, लेकिन उसे गांव की सादा सी लड़की से शादी करनी थी। वो तो बस ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन उसकी कहीं तुझ पर नजर पड़ गई और तुझे पसंद कर लिया, इसलिए पता करवाते करवाते घर तक आ पहुंचा। देख तू भी हाँ कर दे, क्योंकि तेरे अब्बा और मुझे भी लड़का बहुत पसंद है। अम्मा ने इतना कहा, वो तो खुशी से निडाल थी। फिर मेरे ना करने के बावजूद भी अगले रोज सादगी से मुझे उस शहरी बाबू के साथ निकाह में दे दिया गया। निकाह के वक्त पता चला कि उसका नाम अदनान है और निकाह के साथ ही रुखसती भी कर दी गई। मेरे शोहर का कहना था कि उसे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बीवी मिल गई है, इतना ही काफ़ी है। मुझे उसकी किसी भी बात पे एतबार न आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अगले रोज़ मुझे अपने साथ ले आया। लेकिन ये उसका घर वाकई कोई महल ही लगता था। वो इतनी बड़ी कोठी थी, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे घर देखने ना दिया। कहा कि अब ये तुम्हारा ही घर है, आराम से देख लेना, और मुझे कमरे में ले आया। मुझे बेड पर बिठाते ही इंतज़ार करने का कहा। थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो उसके हाथ में एक नया जोड़ा और साथ में एक दूध का गिलास था। उसने वो जोड़ा मुझे पहनने के लिए दिया और जो ही बाहर आए तो दूध पीने का कहा। जब मैंने दूध पिया तो उसमें बहुत तेज खुशबू आ रही थी। जब पिया तो किसी फ्रूट का जायका महसूस हुआ। खैर मैंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद अगली सुबह जब मैं उठी तो शोहर ने पहले ही एक और नया सूट निकाल कर रखा हुआ था और मुझे कहा कि अपना जोड़ा तब्दील कर लो। मैंने खामोशी से जोड़ा लिया और पहनने चली गई। जब वापस आई तो शोहर ने नाश्ता बनाने का कहा तो मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन घर तो कल देखा ही नहीं था, इसलिए शोहर से बावर्ची खाने का पूछने दोबारा कमरे में आई तो वो कुछ चीज़ शापर में डाल रहा था और मुझे देखते ही घबरा गया और जल्दी से शापर बिस्तर पर रखते ही मेरे पास आया। क्या हुआ प्यारी बीवी, मैंने तो तुम्हें नाश्ता बनाने भेजा था ना, क्या नाश्ता बन गया है? वो इतने प्यार से बोला था कि मुझे समझ न आया कि कैसे बताऊं कि अगर पता होता कि बावर्ची खाना कहाँ है तब ही बनाऊंगी ना। वो दरअसल मुझे कुछ नहीं पता, आपने कहा था कि घर कल दिखाऊंगा, इसलिए मैंने घबरा कर जल्दी से जवाब दिया ताकि वो नाराज ही ना हो जाए। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है, आओ मैं दिखाता हूँ, अब सब तुम्हारा ही तो है। फिर उसने मुझे पूरा घर दिखाया। घर वाकई बहुत प्यारा था। मैंने जल्दी से पराठे और अंडा बनाया, साथ में चाय बनाकर उनको देने चली गई। वो मुझे देखते ही एकदम से खड़े हो गए। फिर हमने नाश्ता किया। इसी दौरान वो काफ़ी बातें भी कर चुके थे। तभी उन्होंने बताया कि मैं उनको उसी दिन पसंद आ गई थी जब उनको देखते ही अपना चेहरा छुपाया और उनकी शर्मिंदगी को अपनी बातों से कम किया था। इन दिनों मैं जितना अपने शोहर को समझती थी वो काफ़ी अच्छे साबित हो गए थे। मेरे दिल में जितने भयानक लेकर हादसात थे वो सब ख़त्म हो गए थे। वो रोज़ मेरे लिए नए कपड़े लाते और साथ में और चीज़ें भी। आज तक मैंने अपना एक बार पहना हुआ जोड़ा दोबारा नहीं देखा था। उनका कहना था कि तुम खास हो, इसलिए तुम्हारा साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी बातें और हरकतें देखने के बाद मुस्कुरा देती और ख़ुद पर इश्क करने लगती थी कि कितना चाहने वाला शोहर मिला है मुझे। अभी मैं नहाकर ही फारग हुई थी कि जब शोहर घर आए और मुझे स्ट्रॉबेरी लाकर दी थी। साथ में उन्होंने नया सूट भी पकड़ा दिया। आज तुम पूरा दिन ये स्ट्रॉबेरी खाओगी और इसे ख़त्म करोगी, ठीक है ना? वो 2 किलो स्ट्रॉबेरी थी, मैं कैसे खा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाती तो शायद रात तक ख़त्म हो ही जाती, लेकिन सूट देखकर मैं हैरान हो गई और कहा कि अभी तो नहाकर सूट पहनना है, कल ही तो आपने ला कर दिया था, अभी जाओ और जाकर ये सूट पहनो, वो कल वाला जोड़ा है। मैंने कहा है ना कि तुम रोज़ नया जोड़ा पहनोगी। शोहर ने सख्ती से मुझे कहा और सूट पकड़ा दिया। मैं हैरान हुई और जोड़ा लेकर तब्दील करने चली गई। जब बाहर आई तो शोहर ने पानी लाने को कहा। कमरे में पानी मौजूद था, लेकिन कहा कि बाहर से पानी लेकर आओ, ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं खामोशी से बाहर चली गई, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो इतनी अजीब हरकतें क्यों करते हैं। अगर एक सूट दोबारा पहन लिया तो क्या हो जाएगा? पहले तो मैं 4-4 दिन एक ही सूट पहनती थी, तो अब क्या मसला है? क्या उनको मुझसे बदबू आती है या कुछ और बात है? इन्हीं सोचों में जल्दी से मैं पानी लेकर जो कमरे में आई तो शोहर जल्दी से मेरा वही जोड़ा जो अभी मैंने उतारा था उसे लपेट कर एक शापर में डाल रहा था। मैंने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया तो एक घूंट पानी पीकर वहीं रख दिया और शापर को साइड पर करके मुझे अपने पास बुलाया। देखो आसिया, मुझे नहीं पसंद तुम 2-2 दिन एक ही जोड़ा पहनो, और ये बात मैंने शादी की रात ही तुम्हें बता दी थी, तब तो तुम नाराज़ नहीं हुई थी, और अब तुम ऐसा करोगी तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है।
मैं कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा तुम्हें, सफाई तो निस्फ ईमान है। अब चलो मेरी एक और बात सुनो। आज से मैंने बावर्ची की छुट्टी कर दी है और अब से तुम ही खाना बनाओगी। घर में सिर्फ हम 2 ही लोग हैं तो तुम्हें कोई मसला भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ और इसके साथ तुम बिरयानी भी बना लेना और मीठे में खीर। शाम को क्या पकाना है ये मैं आकर बताऊंगा। वो खुद तो चले गए लेकिन मैं परेशान हो गई थी। हम 2 ही तो लोग थे और इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन शौहर ने कहा था तो बनाना था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाने में मुझे 3 घंटे लग गए थे। मैं पसीने में नहा गई थी, मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। अभी मैं नहाने का सोच ही रही थी जब शौहर फिर घर पर आ गए। हमने साथ मिलकर खाना खाया और वो वहीं बैठ गए और मुझे रात का खाना बनाने को कहा। मेरा इरादा नहाने का था, लेकिन इतने खाने की लिस्ट सुनकर मैंने पहले खाना बनाने का सोचा। वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही आकर बैठ गए। मैं काम के साथ साथ बारी बारी स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शौहर की नज़र मुझ पर ही थी। शाम के 6 बजे जब मैं फारग हुई, मैं फ़ौरन कमरे में आई ताकि नहा सकूं, लेकिन बेड पर नया सूट देकर मैंने जल्दी से वो पकड़ा और नहाने चली गई। उस वक्त सोचने तक का वक्त नहीं था मेरे पास। हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं बाहर आए तो शौहर नहाने चले गए। उसके बाद रात का खाना खाते ही सो गए। रात में जब मैंने कुछ खंखने की आवाज़ सुनी तो आंख खोलकर देखा तो शौहर मेरे वो कपड़े जो आज मैंने बदले थे उनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। मैं अब हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जितना मैं उनको समझने लगी थी, मतलब तो साफ था कि ज़रूर कोई राज है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते कि होश ही न रहता कि कुछ भी सोच सकूं। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी वो ये थी कि एक बार भी उन्होंने मुझे गोश्त खाने नहीं दिया था। जब भी बिरयानी बनाते तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता था। पता नहीं उनको मेरी एक एक हरकत का पता कैसे चल जाता था, लेकिन इस बात की तस्दीक भी उन्होंने खुद ही कर दी थी कि घर में कैमरे लगवाए हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा ना होता था कि मैं उनकी किसी भी बात से इनकार करूं, क्योंकि वो सब तो देखते रहते होंगे। इन सब सहतियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा था और ये भी सोच सोच कर मैं खुद को पकान करती रहती थी। शौहर को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए। मैंने मना भी किया लेकिन नहीं माने। डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन शौहर ने कहा कि शक दूर करने में कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ज़रा भी तकलीफ़ हो। इसके बाद अगर मुझे दर्द होता भी तो मैं शौहर को बताने की गलती ना करती, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मेरी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर परेशान हो जाता था। लेकिन इसी दौरान वो मुझसे वर्जिश भी करवाता और कपड़े लाजमी बदलवाया करता था। ये आदत उसने नहीं छोड़ी थी। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा शौहर अब पहले से भी और अमीर हो गया था। काम वो इतना तो नहीं करता था जितना वो घर में 2-3 चक्कर लगाता, और पहले तो फिर भी दिन में 1 जोड़ा तब्दील करवाया करता था, लेकिन अब दिन में 3-3 बार मुझे जोड़ा बदलना पड़ता। मैं इस बात से तंग नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था कि अगर अभी जाकर नहीं नहाई तो जिंदा नहीं बचूंगी। इन सब के बारे में सोचकर मैं ज़हनी मरीज बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर भी मेरे पास लगा होता था जो कि मैं रोज़ खाती थी। यह सब तो तब से शुरू हो चुका था जब से सर्दियाँ आई थी। अब तो शौहर ने घर के सभी मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी। मैं सारा दिन काम करती रहती और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक ही बार नहाने का सोचकर जब नहाती तो शौहर आकर हीटर चालू कर देता और मुझे एक कमरे में बंद कर देता। जहां मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता कि कपड़े बदल दो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी कपड़े तब्दील करती तो 2 किलो या 1 किलो कोई ना कोई फल लेकर आता। कभी अंगूर, कभी आड़ू तो कभी अमरूद। लोग इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं और मैं ये सब कर कर के ज़हनी मरीज बन चुकी थी। अब मैं सोचती थी कि इससे तो मेरा गांव ही अच्छा था। वहाँ मौजूद मिट्टी का मकान अच्छा था, जहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती थी, और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मी का समा रहता था। मेरी अब बस हो चुकी थी। मुझे रोज़ कमरे में बंद करके हीटर चला दिया जाता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि इनकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द दम घुटने से मर जाऊंगी। आज जब कमरे में बंद हुई तो हीटर खराब कर दिया, लेकिन शौहर ने जल्द ही नया मंगवा लिया। अब मैंने एक तरकीब सोची थी
और एक बूढ़े मुलाजम जिनको मेरे शोहर ने नौकरी से निकाल दिया था, उनसे कहलवाकर सारे कैमरे खराब कर दिए और शोहर को पता भी न चला, क्योंकि अब उनको यकीन था कि मैं अब कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। लेकिन मुझे अब राज जानना था, जिसकी वजह से मेरी हालत मरने वाली हो जाती थी और मेरा शोहर मुझे मरने भी नहीं देता था। मैंने अगले रोज अपने कपड़ों की जगह काम वाली लड़की का सूट रख दिया। शोहर वो सूट लेकर रात को ही घर से निकल गया। मैंने उसका पीछा किया तो वो एक फैक्ट्री में दाखिल हुआ। वहां जाते ही मेरे सूट को एक बड़ी सी लोहे की मशीन में डाल दिया गया। उसके बाद न जाने क्या डाला कि थोड़ी देर बाद वहां एक महलूल तैयार हुआ जो बहुत सारी बोतलों में मशीन के जरिए भरा जा रहा था। जब मैंने एक शीशी उठाकर सूंघी तो वो खुशबू थी। अब मुझे कुछ मामला समझ में आ रहा था। मैं एकदम से शोहर के सामने चली गई तो शोहर मुझे देखते ही घबरा गया। उसने मुझे डांट कर वहां से भेजना चाहा, क्योंकि वहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन मैं ना गई। उसे सच बताने का कहा, वरना मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी या फिर अपनी ही जान ले लूंगी। ये सुनते ही शोहर सख्ते में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कहूंगी। देखो आसिया, तुम मुझे छोड़कर ना जाना और मरने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। तुम आओ यहाँ कमरे में। शोहर ने घबराकर मुझसे दरखास्त की, लेकिन मैं ना मानी। बिल्कुल नहीं, यहाँ सबके सामने ही बात होगी, वरना मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तभी शोहर ने नादम होकर बोलना शुरू किया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था, लेकिन फिर मुझे तुम मिल गई। मुझे तुमसे एक अजीब और बहुत अच्छी खुशबू आई। मैंने फैसला कर लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा और मैंने इस पर अमल भी किया। मैं तुम्हें रोज नए कपड़े पहनने के लिए देता ताकि तुम्हें पसीना आए, और उसके साथ साथ तेज खुशबू वाले कभी फल तो कभी सब्जियां खिलाता रहता। मैं बहुत खुश था कि मेरा तजुर्बा कामयाब हो चुका है और जो परफ्यूम बना था वो मार्केट में बहुत मकबूल हुआ था, जिसकी वजह से मुझे और भी पैसे का लालच पड़ चुका था। मुझे बहुत कामयाबी मिलती जा रही थी और पैसे की भी हिर्स बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर सर्दी आ गई तो मेरे जहन में हीटर का ख्याल आ गया। सर्दी में तुमसे काम ना करवाता, बस लॉन में बिठाए रखता। सर्दी लगने लगती तो तुम्हें कमरे में बंद कर देता। हर तरफ से मेरा फायदा हो रहा था। मैं बहुत खुश था। लेकिन इसी दौरान जब तुम बीमार पड़ गई तो मेरी रूह कांप जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें दवा खिलाता रहता। और देखो आज हम कितने अमीर हैं। हमारे पास इतना पैसा सिर्फ हम दोनों का है। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो हम मिलकर ये सब चलाएंगे। शोहर की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। अम्मा अब्बा को तो मैं पहले ही बुलवा चुकी थी और साथ में पुलिस को भी बुलवा लिया और एक अच्छी बड़ी लड़की को शादी के बाद नफसियाती बनाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया, बल्कि उसे हुला का नोटिस भी दिलवाया। और इस सब में अपने माँ बाप को ही कसूरवार कहा था। सिर्फ दौलत देकर ही मेरी जिंदगी बर्बाद करवा दी। बगैर जांच पड़ताल के तो धोखे ही मिलते हैं। इसके बाद जेल में भी मेरा शोहर वही बातें दोहराता रहता कि बीवी के कपड़े फैक्ट्री में लेकर जाने हैं और अमीर हो जाऊंगा। और ऐसे ही अपना दिमागी तवाज़ुन खोकर पागल हो चुका था। शोहर के बाद उसकी सारी दौलत का मुझे हकदार बनाया गया। अम्मा अब्बा अलग नादम थे। मैं आज इस आलीशान बंगले में अपने घर वालों के साथ रह रही हूँ। ये सारी दौलत मुझे अपने पसीने की कमाई लगती है, जो सारा दिन काम करके मुझे मिली थी। लेकिन आज भी मैं ये बात सोचती हूँ कि अदनान जो अपनी बीवी को ज़हनी अजियत बना चुका था, उसकी जगह अगर आप होते तो वैसा ही करते, या आसिया ने उसे जेल भिजवा कर कोई गलत किया है? क्या आसिया को उसे माफ़ कर देना चाहिए था? हमें अपने ख्याल से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।